Okay, so very warm welcome everyone. I welcome you all on this platform of SSB Online Tayari. So today we have Lieutenant Bhaskar, who is a retired Indian Naval officer, and he is a security expert with a rich experience in HR, admin, and information security, operations, supply chain, and fire and safety. And he's the founder of the Ultimate Mentors Group. So over to you, sir. You can start the session. Thank you, Ankush. So today I'll be covering the screening part, and I think that is very important because to get into the, to clear SSB and to get into the armed forces, the very first thing that you need to do is to clear your screening. So first, I'll just give you a very brief note about how this thing is conducted. So once you clear your CDS or NDA written part or whatever mode you are going through, be it a technical entry or through any medium, if you're going for an armed forces officers entry, then you have to go through the SSB, which is basically service selection board, which is conducted by the armed forces, be it Army, Navy, or Air Force, and it has various centers. And then, once you clear your, basic written and other formalities which are required before joining, before joining the SSB or before going to for the interview, that is basically nothing but the interview. So you have to, practically appear for it, which is a 5-day session. 5 days interview. It is one of the toughest interviews, you can say, because your personality is assessed overall in all the parameters that you can even think of. Basically they have been like collaborate, we can say collectively known as OLQs, that is officer like qualities. So there are various OLQs, but primarily there are 15 that we talk about, that they are assessing you on, and that every quality within that 15 is having a set of 3 to 4 qualities into it. So this is a very brief, even OLQ also I'll tell you, because it is very important for you to know all these things, because unless you know the basic concept, it is very difficult to crack the thing. So, these OLQs start, they have been divided further into 4 sections. And this is all, you can find them in books also, but it is more important to have an understanding of the same. So the 4 sections, we can say, one is, mind, the above section. Then the another is your heart, the second section. Then third is, somewhere near your navel, your I'm so sorry, your base, navel as in your stomach somewhere, which is the courage part. And the fourth, which is basically nothing more about coordination. And the fourth is the below part, where where you talk about courage and determination. So the very first part, which is on the top, mind, is they are not looking for intelligence, but basically the effective intelligence. Difference between intelligence and effective intelligence is that any intelligent person can do certain things, and they're very good to have, but it is not good if you cannot apply that intelligence into something. Although a person who is not very intelligent but is having his presence of mind, he can effectively utilize it, then it is better than having an intelligence which is not able to use in a handy manner in a ready-made format. uh, just like that also, there are organizing the ability, which is again in the mind. Then if talking about the qualities like that of heart, there is like coordination skills, and then your empathy for others, the way you feel, your determination, and your dedication, the thing that feel when you feel overwhelmed by certain things. And similarly, so if I talk about these qualities, so they are like courage, dedication, determination, your organizing ability, your convincing ability, your effective intelligence, your initiative skills, and stuff like that.
Now coming to the screening part that I would be covering today. So when you go there for the interview, you are asked to fill up a form in the very beginning, which is known as PIQ, Personal Information Questionnaire. This you have to fill up because it has a complete you can say mapping of your personality, that what all you have been doing throughout your life till then when you appeared for the interview. So it seems to be a very simple form, but let me tell you, it is very important to fill this form sincerely, seriously, and with a presence of mind. And it is always suggested to have a very good practice of it. Fill it, try and fill it at as many times as possible before going to SSB, so that you are Excuse perfect me, with sir. it. Yeah, Sir, can I ask something? yeah, please ask. Sir, can I ask it out in Hindi? uh Hindi, yes, Hindi is fine. So everybody is comfortable with Hindi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Both language. Sorry, Yes, sorry, sir. sir. सर आप मेरी आवाज समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ, बट आपको मैं बताऊं कि ये एसएसबी में आपको हिंदी और इंग्लिश भी एक बहुत बड़ा मैटर पड़ेगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही हमारी मातृभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। बट इंटरव्यू के दौरान आपको हिंदी में बोलने से कुछ ऐसा कहीं भी पैरामीटर ऐसा नहीं है कि हिंदी में बोलना अलाउड नहीं है, बट हिंदी में बोलने से जो दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी में बोलने से आप लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए हिंदी को आपको अवॉइड करना होगा। अभी मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम पार्ट हिंदी में कवर कर देता हूँ, बट इट विल ये पार्ट काफी मुश्किल रहेगा किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर्फ हिंदी बोलता है, क्योंकि एसएसबी में इंग्लिश का रोल भी है, जो कि बताया नहीं जाता पर समझ में आ जाता है। एनीवेज, Yes, sir. हाँ जी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाई लैंग्वेज यूज करूंगा सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एंड यू आल्सो कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट। तो कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है या कुछ ऐसी चीज है जो कि मुझे भी ऐसा लगता है जो आपको इंग्लिश में समझना मुश्किल होगा, उसको मैं हिंदी में कवर कर दूं। तो ये जो मैं पीआईक्यू फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर फॉर्म आपको बता रहा था, ये भी बाय द वे इंग्लिश में ही होगा। एंड इसमें जो सेक्शंस होंगे वो होंगे कि आपने सिंपली ऐसा जैसा भी एक जॉब फॉर्मेट का फॉर्म होता है, उसमें जो आपके स्पेशल अचीवमेंट्स होंगे, आपके हॉबीज होंगी, आपके बारे में जो उन्होंने थोड़ा सा पूछा होगा, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज वो सारा का सारा ही आपसे आगे पूछा जाएगा उस 5 दिनों में जब आप वहां पे रहेंगे। तो अगर आपने ये भरा सर। हाँ जी सर, जैसे मान के चलो सर, डीडी टॉपिक्स होते हैं, तो डीडी टॉपिक्स में हम लोग जैसे इंडो पाक रिलेशन, इंडो चाइना रिलेशन और कुछ कोविड-19 पे 3-4 जो इम्पोर्टेंट है जो फिलहाल में चल रहे हैं, उनको याद करके जाते हैं। अगर मतलब जीडी टॉपिक में जब हम एसएसबी में जाते हैं, अगर उससे कोई अलग टॉपिक आ जाए तब क्या करें सर? मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने वैसे अभी आज जो कवर कर रहा हूँ मैं, वो स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, बट आपकी क्वेरी को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ कि जो भी ये मैंने आपको बताया ना, ये एसएसबी की तैयारी बहुत ही गहरा और इंट्रिकेट सब्जेक्ट है। इंट्रिकेट बोले तो काफी जिसमें बहुत सारी निटी ग्रिटी है, बहुत सारा सूक्ष्म सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, पर है भी बहुत आसान। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपको समझ आने पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने इंडो पाक के रिलेशन पे कितना बोला, या इजराइल और पैलेस्टाइन के बारे में कितना जानते हैं आप, या फिर देश में क्या चल रहा है उसके बारे में कितना जानते हैं। वो तो आपको जानना ही है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज अगेन ए सब्जेक्ट। आपकी नॉलेज वो एक OLQ में आती है, एन ऑफिसर हैज टू बी नॉलेजेबल। बट साथ ही साथ उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट करेगा कि अगर आपको उस वक्त नहीं पता कि उस टॉपिक पे आप तैयार नहीं है, तो आप शांति से, अगर ग्रुप डिस्कशन है तो बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों को बोलते हुए सुने, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसी बात को सही तरीके से अपने शब्दों में सही मौके पे प्रस्तुत कर दे। जैसे कि हम थोड़ा बहुत मैंने बताया ना, पढ़ाई का भी इसमें योगदान होता है। जिसने साइंस पढ़ी है या जिसने थोड़ी सी पढ़ाई भी ढंग से करी है 10वीं तक भी, तो उसको पता होता है कि ग्राफ होता है जिसमें एक क्रस्ट और ट्रफ दो चीजें होती हैं। क्रस्ट होता है जब ऊपर की तरफ जाता है और ट्रफ होता है जब नीचे की तरफ आता है। तो वो जो साइनोसॉइडल जैसे वेव बनती हैं, और जो इस क्रस्ट और ट्रफ होता है, उसी में जब आप देखेंगे कि जब सब के सब एक साथ बोल रहे हैं, यानी वो क्रेस्ट का टाइम है, जबकि आप नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं, और आपका बोलना उस वक्त ना तो पॉइंट कोई लाएगा आपके लिए, ऊपर से ये दिखाएगा कि इस इंसान में इतनी भी समझ नहीं है कि सारे के सारे बोल रहे हैं और ये भी बोले जा रहा है।
परंतु तभी अगर आप उसमें एक वो पॉइंट पकड़े जबकि उनमें से एक या दो चुप हुए और कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक है नीचे आ रहा है वो डिस्कशन का, क्योंकि मैंने आपको बताता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में कभी भी शांति नहीं रहेगी, बहुत ही शोर शराबा होगा, सारे के सारे अपने आप को बोलना चाह रहे होंगे, कितना भी किसी को ट्रेन करो, कितना भी किसी को समझाओ कि अपने टाइम पे बोलना, इस तरह से बोलना, वहां पे आके हर कोई हर चीज भूल जाता है। और बच्चे होते हैं उनके ये स्वाभाविक भी है कि 22-23 साल का, 21 साल का, 19 साल का लड़का इतना ज्यादा समझ भी नहीं पाता। पर आपके लिए ये जानना, तब भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, बहुत जरूरी है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो जब आप देखेंगे कि हाँ अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा शांत हुआ है, थोड़े कम लोग बोल रहे हैं, तब आप अपना उसी पॉइंट को जो आपने उन्हीं लोगों से सुना था, क्योंकि आपको खुद तो पता नहीं, आपने जैसे बताया कि आपको नई नॉलेज है कि क्या चल रहा है विंडो कॉग में अभी रिलेटेड, तो दूसरे का सुन के और उसको अपने शब्दों में उसको या तो सपोर्ट कर देना है या अपने शब्दों में दोबारा से बोल देना है। रिपीटिशन दिखना नहीं चाहिए, रिपीटिशन हो सकता है। परसेप्शन एंड रियलिटी, परसेप्शन एंड रियलिटी आर द टू थिंग्स। आपका वहां पे परसेप्शन मैटर करेगा, रियलिटी नहीं, आप क्या असली में है वो, और आपके बारे में क्या मुझे डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं से। यस सर, कंटिन्यू। हाँ जी, तो आप क्या असली में आपने किया है, आपकी असली पर्सनालिटी कैसी है और आप दिखा कैसे रहे, यानी परसीव्ड और रियलिटी, रियलिटी में क्या है यार, परसीव कैसे कर रहा है सामने वाला, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, पर आपको फर्क दिखाना पड़ेगा, क्योंकि असली जो हमारी पर्सनालिटी है किसी की भी इतनी अच्छी आमतौर पे नहीं होती कि वो डिफेंस ऑफिसर बन सके, बट वहां पे आपको वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग में वो आपको रिफाइन करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आप वो पर्सनालिटी ला पाएंगे। बट अगर आप वो दिखा ही नहीं पा रहे तो फिर नहीं चलेगा। तो उसके लिए ही आपको जब ग्रुप डिस्कशन में जब आप बोल रहे हैं तो आपको धीरे बोलना है, अपना बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, हाथ के मूवमेंट पे, पैरों के मूवमेंट पे, अग्रेशन आपके चेहरे पे नजर नहीं आना चाहिए, गुस्सा नजर नहीं आना चाहिए, मौका आने पे बोले, और जो बात बोले वो सॉलिड बोले। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी किसी की सुन के, 2-3 लोगों की सुन के उससे अपने शब्दों में बताना आना चाहिए। कहते हैं ना, नकल भी में के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो आप वहां पे नकल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अकल होनी चाहिए कि नकल कैसे करनी है, तो आप उसको उस तरह से भी बोल सकते हैं, वो आपको बचा लेगा। दूसरी बात कि सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ नॉलेज की वैल्यू नहीं होती, आपके बाकी व्यवहार की, कि आप कैसे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, कैसे आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कैसे आपको लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, कितना आप कन्विंस कर पा रहे हैं, ये सारी की सारी, जैसे मैंने आपको बोला, कन्विंसिंग एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सारी की सारी OLQs में ही आती है। इन सब पे आपको दिखा जाएगा, ना कि सिर्फ आपके ज्ञान पे। नाउ कमिंग बैक टू स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग में Sir, मैं आपको जैसे sorry sir, just a question, sir. हाँ जी, Sorry sir, just a question, sir. If in a group discussion, people are not allowing me to speak, then how to intervene if there is a chaos like a fish market like situation over there, sir? ओके, Yes. it will always be there. You don't think that it is not there, and in case it is not there, then you are sadly mistaken, or that means the batch is going to wash out. क्योंकि ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो सकता जहां पे कि आपको फिश मार्केट नजर नहीं आएगी। ठीक है, जहां पे नहीं नजर आ रही है वहां पे कुछ सीरियसली रॉन्ग है। ठीक है, बट द थिंग इज कि आप उसमें अपना मौका कैसे निकाल रहे हैं। मैंने आपको बोला जिंदगी में दिक्कतें आती रहेंगी, आपको उन्हीं दिक्कतों के बीच से अपने आप को प्रूव करना है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में जब AC होगा, लाइट होगा, शाम का टाइम होगा, मैं थका नहीं होगा तब मैं पढ़ाई करूंगा। आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई करनी है। ऐसी जब डिस्कशन में आपको कोई मौका नहीं मिल रहा होगा बोलने का, तो भी आपको ढूंढना है कि कब आपको बोलना है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आप में वो पर्सनैलिटी में होना चाहिए। मैं आप सबको पहले ही एक बात बता देता हूँ कि जिस इंसान ने अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रखी है, जिसके दिल में वो जोश हो, उमंग नहीं है, जिसने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया है बचपन से, या जो अभी भी सुधरने के मूड में नहीं है, या जो अभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता, मेरे दोस्त, वो डिफेंस का ऑफिसर नहीं बन पाएगा। डिफेंस का ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई और ऐश नहीं चाहिए होती, साथ ही साथ आपका ओवरऑल पर्सनालिटी देखा जाता है। मैंने आपको बताया ये 15 जो OLQs हैं, आपको कहीं से इनके बारे में पता चल जाएगा। वो सारी की सारी OLQs उसी इंसान में आते हैं जो सिंसियर होता है, जिसने पढ़ाई भी करी है, खेलकूद भी किया है, दोस्तों के प्रति भी जिसका अच्छा व्यवहार है, जिसका अपने परिवार के साथ भी अच्छा व्यवहार है। एंड दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू नो फॉर एवरीवन हु इज गोइंग फॉर SSB। नाउ कमिंग बैक टू स्क्रीनिंग, तो आपका जब वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर आप भरेंगे तो बहुत ही ध्यान से भरेगा। आपने आज तक जो भी अचीवमेंट है आपकी, उनको याद कीजिए, पहले से तैयारी करके जाइए, और वहां पे उसको उस पेन एंड पेपर से उसको नोट करिए। अगर आपने कभी स्कूल लेवल पे भी फुटबॉल खेली है तो आप मेंशन करिए कि आपने फुटबॉल खेली है।
उसमें मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, देखिए एक टॉपिक की तरह से अगर मैं चीजों को कवर करूंगा तो कभी भी आप लोगों को सही से समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको ओवरऑल कवर करना ज्यादा जरूरी है। फुटबॉल का एग्जांपल लेते हुए, अगर किसी ने सही में फुटबॉल खेली है, भले ही उसने स्कूल लेवल पे ही खेली हो, तो उसको फुटबॉल की इतनी चीजें पता होंगी कि उसके बाहर कितना होता है, इतना उसका गोल पोस्ट कितना बड़ा होता है, कॉर्नर किसे कहते हैं, पेनाल्टी शूट क्या होता है, कितने प्लेयर खेलते हैं। अगर वो इतना भी नहीं बोल पा रहा है, यानी उसने फुटबॉल नहीं खेली है। तो जिसने नेशनल लेवल पे खेली है वो तो ये भी जान लेगा कि किस किस कंपनी की फुटबॉल बनती है, कैसे डायमेंशंस होते हैं। तो आपका लेवल जो होता है वो आपके ओरिजिनलिटी से जुड़ा हुआ होता है। आपको फुटबॉल के बारे में उतनी नॉलेज होगी जिस लेवल पे आप खेल चुके हैं। ये पर तब भी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान फुटबॉल स्कूल लेवल तक खेला हो, पर फुटबॉल के बारे में सारी जानकारी लेके जा सकता है, बड़े बड़े फेमस प्लेयर्स का नाम ले सकता है, बड़े बड़े फुटबॉल के सारे डायमेंशंस पता कर सकता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता कर सकता है, मेन मेन गेम्स याद कर सकता है। वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसने वो प्रैक्टिकली किया नहीं, पर उसे करना पड़ेगा अगर उसे फुटबॉल दिखाना है अपने स्पोर्ट्स में तो। और फिर वो बोल सकता है कि हाँ मैंने स्कूल लेवल तक खेली है भले ही, बट वो बोल सकता है कि नहीं मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, मैंने या स्टेट लेवल तक खेली है। वो तभी बोल पाएगा जब उसको वो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। So now yes, I am from special forces. So now coming to the this thing personal information question है, तो आप उसमें अपने बारे में सारी की सारी चीजें बहुत ही सोच समझ के और पूरे डिटेल में भरे। आज तक आपने जो भी अच्छे काम किए हैं, अपने मम्मी पापा की भी अगर आपने कहीं मदद करी है, किसी परिवार की मदद करी है, कुछ भी किया है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी के जो अच्छे पार्ट है, जो उन 15 क्वालिटीज को कवर कर रहे हैं। हेल्पफुलनेस इज अगेन एन OLQ। अगर कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने आपको बोला, कोऑपरेशन इज अगेन एन OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ये क्वालिटीज को आप दिखाइए, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर से ही शुरू हो जाइए। पहले दिन से घुसते ही आप में वो 15 चाहिए, नजर आनी चाहिए किसी ना किसी रूप में। सारी, कोई एक क्वालिटी बहुत ज्यादा होने से या कोई क्वालिटी बिल्कुल ना होने से प्रॉब्लम है। सारी क्वालिटीज आप में है, थोड़ी थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो ही चाहिए, क्योंकि उनको एक बैलेंस पर्सनैलिटी चाहिए। उन्हें बहुत इंटेलिजेंट बंदा नहीं चाहिए, बहुत बेवकूफ नहीं चाहिए, बहुत पैशनेट भी नहीं चाहिए, बहुत डिटर्मिन्ड भी नहीं चाहिए, बहुत करेजियस भी नहीं होना चाहिए, पर ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही करेज नहीं है, बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई में जीरो है, बिल्कुल ही कुछ अपडेट नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच विल कीप यू गोइंग, बिकॉज यू हैव टू कीप अ बैलेंस पर्सनैलिटी। देखिए ये दुनिया ही पूरी बैलेंस पे टिकी है, हर चीज एक इक्विलिब्रियम पे टिकी है, एक बैलेंस पे टिकी है, पृथ्वी हमारी बैलेंस पे टिकी है। तो ऐसे ही वो देख रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी, वो बैलेंस, कि आर यू अ बैलेंस पर्सन। आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, जैसे मैंने बोला ग्रुप डिस्कशन में बहुत लोग बोल रहे होंगे, और आप उस वक्त जोश में आ गए, आपने खड़े हो गए, आपने बॉडी लैंग्वेज से किसी को कुछ गलत इशारा कर दिया, थप्पड़ मारने का या गुस्सा करने का, या आपने किसी का हाथ पकड़ लिया, जोश जोश में लोगों की आदत होती है हाथ पकड़ लेने की, बोल कि मुझे बोलने दो, या कुछ भी बोल दिया, तो वो आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिखाएगा, और वहां से ही आपका ये मान के चलिए कि सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस रखना है। हमेशा उन 15 OLQs को माइंड में रिपीट करिए। आज से ही शुरुआत कीजिए कि मेरे को इसी तरह से जीना है, उन 15 OLQs के साथ ही जीना है, उनको मुझे हर अपने एक्शन में दिखाना है। आपका कोई भी एक्शन होता है, अगर आप किसी अपने दोस्त से मिलने भी जा रहे हैं, तो आप देखिए कि मैं उस दोस्त से मिल के आया, आधे घंटे मिला, मैंने कैसे हेलो या सो आप किसी से मिलके भी आ रहे हैं, तो आप उनसे ये देखिए घर आकर वापस कि मैं उस अपने फ्रेंड से मिलके आया हूँ, मैंने कौन कौन से OLQs को डिस्प्ले किया है वहां पे। क्या मैंने उसके साथ प्यार से बात करी, क्या मैं उसके साथ कोऑपरेटिव था, क्या मैंने उसको अपना कोई इनिशिएटिव दिखाया, कहीं पे कुछ पानी का अगर ग्लास भी मान लीजिए 2 पड़े हैं, आपने पहले उठाया, दैट मींस यू हैव द इनिशिएटिव स्किल्स। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ आफ्टर PIQ, सेकेंड थिंग वुड बी, एक दो आपसे एक बहुत ही आसान से टेस्ट होंगे, जो कि आपको वो आपका बेसिकली इफेक्टिव इंटेलिजेंस के लोगे, वो आप कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न वगैरह क्लियर करके गए होंगे, दैट वुड बी डन। दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी एज सच, तो उसमें आपको अच्छे नंबर लाने होते हैं, पर वो आप ले आएंगे जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है ना। उसके बाद आपसे स्टोरी लिखने को कहा जाएगा। आप सबको एक रूम में ले जाया जाएगा, रूम में सामने वो थोड़ा सा पहले ब्रीफिंग करेंगे, बताएंगे आपको इसके बारे में, जैसे मैं आपको बता रहा था। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि अब एक स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि पिक्चर थोड़ी हेजी होगी, हेजी मतलब थोड़ी ब्लर्ड होगी, और उसी पे आपको अपने माइंड के हिसाब से कि आपने उसमें क्या देखा, क्या समझा, एक स्टोरी लिखनी होगी। वो स्टोरी जो आप लिखेंगे, उसके बाद उसी स्टोरी पे डिस्कशन होगा, जिसे स्टोरी डिस्कशन कहते हैं। नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी आप लिखेंगे, ये आप भूल कर भी तब मत लिखिएगा जबकि
वो दिखाया जा रहा है और आप अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं। ये सब बोलने की बातें अलग होती हैं, करने की बातें अलग होती हैं। आपको, मैंने दोबारा बोला, आपको ट्रेनिंग लेनी है। बिना ट्रेनिंग के कोई होता नहीं है, जब तक कि वो बहुत ही ज्यादा उस टाइप की पर्सनालिटी ना हो जिसकी बचपन से ही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हो पूरी तरह से, या बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, एक अलग बात है। डिफेंस का बैकग्राउंड है, सीनियर डिफेंस ऑफिसर का। अदरवाइज जनरली आम तौर पे लोगों में ये क्वालिटीज इनबिल्ट नहीं होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप बिना कोचिंग लिए आप रिकमेंड हो पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है, पर मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको कोचिंग तो लेनी है, पर ये दिखाना नहीं है कि आपने कोचिंग ली है। तो इसलिए आपको इस तरह से प्रस्तुत करना है अपने आप को कि आपने कोचिंग ली भी है, पर वो पता भी नहीं चलना चाहिए। तो वो जो स्टोरी आप लिखेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं लिखनी है कि आपने 4 मिनट में ऐसी स्टोरी लिख दी कि जो आपकी उम्मीद नहीं की जा रही, क्योंकि आपने 12th में 60% लाए हैं, आप कोई खास आपकी रुचि है नहीं गेम में, आपने कुछ पीआईक्यू में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज भरी नहीं है, पर स्टोरी आपने ऐसी लिख दी सुपर हीरो की कि जैसे आपसे बढ़कर कोई है नहीं। क्योंकि वो जो हीरो आप जिसको दिखाएंगे, जो ही लिख रहे होंगे आप इसमें, या जो रमेश या सुरेश या अरुण जो नाम लिख रहे होंगे, वैसे दोस्त मैं बता दूं, नाम भी थोड़ा अच्छा चुनिए। राम श्याम आप आमतौर पे अवॉइड कीजिए, थोड़ा अच्छा नाम किसी दोस्त का, जतिन हो गया, इस टाइप से कोई नाम रखिए। तो वो जो आप हीरो को उसमें दिखा रहे होंगे कि एक 4 मिनट की स्टोरी में, उसमें वो हीरो आप ही होंगे। तो उससे स्टोरी को इतना बैलेंस रखिए कि हाँ, जो डुएबल है, जो किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि स्टोरी में उसको सुपर हीरो बना दिया, बैटमैन बना दिया, ही मैन बना दिया, वो नहीं चलेगा। या फौज का अफसर जो लड़ते लड़ते मर गया, ऐसी कहानियां नहीं चलती। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल अबाउट कि कैसी स्टोरी आएगी। मान लीजिए एक कहने को हेजी होगी, पर फोटो एक्चुअली में दिख रही होगी, पिक्चर दिख रही होगी आपको। तो फॉर एग्जाम्पल दिखेगा कि एक लेडी है जो कि अपने गेट पे खड़ी है, और एक बंदा है जो बाहर खड़ा हुआ है। इस तरह की स्टोरीज आती हैं। उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको पहले से, जैसे मैंने बोला, स्टोरी 4-5 प्रिपेयर करके जानी है। 4-5 के आप 25-30 करके जाएंगे, क्योंकि आगे जाके जो मैंने बताया, स्क्रीनिंग के बाद स्टोरीज राइटिंग का अलग से एक टीएटी करके होता है, जो कि उसका अलग से टेस्ट भी होगा। तो जो आपने स्टोरीज प्रिपेयर किया, उन्हीं में से एक स्टोरी जो कि इसमें थोड़ी फिट बैठ रही हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अब आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि स्टोरी में आया वही, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फीमेल खड़ी है गेट पे, और एक इंसान बाहर खड़ा हुआ है। नाउ आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जतिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था स्कूल से आने के बाद। खेलते खेलते उसने देखा कि कोई मैडम है, कोई आंटी है, सॉरी आंटी बोल सकते हैं, कि कोई है जो परेशान घूम रही है। वो उनके पास गया, उसने पूछा कि मैम, आंटी जी आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? तो उसने बताया। ये सब आपको शॉर्ट में लिखना है, और वो भी इंग्लिश में। इसीलिए मैंने बोला इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डोंट इग्नोर द कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली इन इंग्लिश। तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है स्कूल से वो वापस नहीं आया है, काफी टाइम हो गया है, और शी इज वरीड। तो उसने बोला कि ठीक है आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, और आप हमें फोटो दे दीजिए एक बच्चे की, और आप एक काम कीजिए, आप स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह से एक बार कहते हैं, अगर आपने बात की ठीक है, नहीं तो एक बार आप पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म कर दीजिए, और मैं अपने दोस्तों के साथ जाके उसको देखता हूँ, और वो बच्चा मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद उसने 3-4 जगह घूमा, इसको स्कूल गया, प्लेग्राउंड में गया, उसके दोस्तों से घर किया, उनको फोन किया, और फाइनली पता चला कि वो अपने किसी दोस्त के घर के वहाँ गार्डन में खेल रहा था। उसने वो बच्चे को मम्मी को सौंप दिया, और बोला कि बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो, मम्मी परेशान हो जाती है। नाउ दिस यू हैव टू कवर इन योर ओन वर्ड्स इन अ वे कि आप 4 मिनट में इसको इंग्लिश में अच्छी तरह से लिख लें। वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप ये स्टोरी लिख लेंगे 4 मिनट में इंग्लिश में, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, जो कि आपको पहले से ही पता होगा, और आपने वही स्टोरी वहां पे लिख देनी है, तो इसमें कैसी सामने उभर के आई? एक आम इंसान की स्टोरी है। एक आम इंसान जो खेलता कूदता है, यानी उसमें कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, फ्रेंडली है, हेल्पफुल है, जो खेलता है, जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, सारी OLQs आ गई उसमें। जो कि अपने स्कूल से आने के बाद खेल रहा है, जिसमें इनिशिएटिव स्किल्स है, क्योंकि उसने देखा कि कोई आंटी परेशान घूम रही, तो सबसे पहले उठ के गया। जिसमें कि क्वालिटीज ऑफ हार्ट भी है, यानी क्वालिटीज ऑफ हार्ट मतलब एम्पैथी, यानी दूसरे का दर्द वो समझ सकता है, यानी क्वालिटीज ऑफ हार्ट में आ गया, यानी कि ही इज कंसर्न्ड, ओके, ही नोज कि नो हाउ वन फील्स व्हेन दे आर डिस्टर्ब्ड। तो आप वो क्वालिटीज उसने वो भी रिफ्लेक्ट करी। देन उसने अपना माइंड यानी इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाया कि ठीक है, आप यहाँ फोन कीजिए,
और वो अपने दोस्तों के साथ गया अगेन, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्किल्स यानी उसके दोस्त हैं, यानी कि वो एक सोशल इंसान है, यानी वो एक ग्रेगेरियस वर्ड का मतलब होता है सोशल, जो कि मिलनसार इंसान है, जो उसके पास दोस्त हैं जो उसकी बात मानते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स भी है, और वो उनके साथ उसे ढूंढने गया है। उसने वहां पे ढूंढा और फाइनली वो उसको पता किया, उसके बाद बच्चे को समझाया, यानी कि ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आल्सो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेरी बिग OLQ बाय द। सो उसने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। उसके बाद मैम को यानी आंटी जी को वो जाकर कहते बच्चे को सौंपा और उसको ब्रीफ भी किया, और आंटी जी ने उसमें थैंक यू लिखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं होती, आप लिख भी सकते हैं, इसमें कोई वो भी नहीं है, पर आमतौर पर अवॉइड कीजिए। तो इस टाइप की जो आप स्टोरी लिखेंगे तो उस स्टोरी से आपकी की सारी क्वालिटीज दिख रही है। तो वो जो जतिन खेल रहा था या जो राहुल खेल रहा था वो कोई नहीं था, वो आप थे, और वो जो काम किए गए हैं वो किसी और ने नहीं, आपने किए। तो इससे आपकी पर्सनालिटी नजर आएगी कि हाँ, दिस पर्सन इज समबडी हु इज हैविंग ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो इसीलिए हम कहते हैं जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो वर्सेटाइल होनी चाहिए, वर्सेटाइल इन अ वे दैट समबडी हु इज एक्सपर्ट और मीडियोकर एटलीस्ट in all the fields. Now coming to the discussion part. अभी आपने एक बार अपनी स्टोरी लिख ली, ऐसे किसी और ने लिखी होगी, किसी और ने लिखेगी। जब वैसे आप जब थोड़ा आपको टाइम मिलेगा सब बोलेंगे हाँ यार आपने बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है, आपका हो जाएगा, ये ऐसा है वैसा है, बट डोंट मिस व्हाट आई वुड से कि डोंट अंडर एस्टिमेट देम। सो दे आर ऑल ट्रेन्ड, दे आर ऑल कोच्ड। कोई भी वहां पे बिना तैयारी के आता नहीं, बहुत ही कम होते हैं ऐसे लोग जो बिना तैयारी के पहुंच जाए। और जैसे ही डिस्कशन शुरू होगा कोई आपको बोलने भी नहीं देगा, जैसे आपने बोला फिश मार्केट बन जाएगी और सब अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे कि मेरी स्टोरी सही, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो है वो दिक्कत में आते हैं। किसी की स्टोरी ना सही है ना किसी की गलत है। हाँ, स्टोरीज में आपकी क्वालिटीज दिख रही हैं, वो डेफिनेटली आपके फेवर में जाता है, बट अगर आप उसको डिस्कस नहीं कर पा रहे तो लेट मी टेल यू, स्क्रीनिंग में स्टोरी डिस्कशन का 70% रोल है। बाकी वो जो आपने 2 टेस्ट किए होते हैं, जो आपने स्टोरी लिखी होती है, जो आपने PIQ फॉर्म भरा होता है, उन सबका PIQ फॉर्म तो इनफैक्ट शुरुआत में देखा, ऑल दोज थिंग्स डोंट इवन कम कलेक्टिवली स्कोर 20% मार्क्स। बाकी 80% आपका वो डिस्कशन में जो आने वाली जो आपकी क्वालिटीज है उन पे फोकस होगा। वो क्वालिटीज को आप कैसे निखार सकते हैं कि जब आपकी स्टोरी डिस्कशन शुरू हो रहा है, कोशिश कीजिए इनिशिएटिव लेने का, इनिशिएटिव आपकी स्किल आ जाएगी उसमें। पर अगर आपने बोला और बाकियों ने भी बोलना शुरू कर दिया और आपने एक सेंटेंस बोली तब तक लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, आप चुप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपने शुरुआत करना दिखा दिया, GTO को पता चल गया। उस GTO की तरफ देखना नहीं होता है, स्टोरी जो आपको जो असेस कर रहा है असेसर की तरफ कभी देखना नहीं होता है, उसको सब पता होता है। वो आप अपने आप को उस वक्त ये दिखाइए कि आप लोगों को सुन रहे हैं। लिसनिंग एबिलिटी इज अगेन एन OLQ, आपको सुनना आना चाहिए। तो जो इंसान सबको सुन रहा है और अकॉर्डिंगली बात कर रहा है, उसमें अनदर OLQ अपने आप आ गई। तो आपने इनिशिएटिव लिया बट आपने देखा सारे के सारे बोल रहे हैं, आप शांत हो गए, आप उसके बाद चुप हो गए, अपनी एक सेंटेंस कंप्लीट करके आपका 1 नंबर चढ़ चुका है कि आपने इनिशिएटिव स्किल है, आपने इनिशिएटिव ले लिया है। और अब आपको क्योंकि बाकी बोलने नहीं दे रहे तो आपने बाकियों को बोलने का मौका दिया। उस दौरान जबकि लोग आपको बोलने नहीं दे रहे और आप वहां पे बैठे हैं, तब तक आपको सबके बारे में सुन के सब, इससे पहले मैं आपको बता दूं हर कोई अपनी अपनी स्टोरी नरेट करेगा स्टोरी डिस्कशन से पहले। जब लोग अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई विश, सो आई एम नाउ टेलिंग यू। स्टोरी नरेट कर रहे हो तो किसी भी 3 या 4 इंसान की स्टोरी आप सही से रट लीजिए। मान लीजिए आप 10 या 12 का ग्रुप है, तो उसमें आपको करीब 3 या 4 लोगों की स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह रट लेनी है। बाकियों पे गर्दन हिलाते रहिए, नॉट करते रहिए कि हाँ आप सुन रहे हैं, आपका पूरा ध्यान वहां है, पर आपके मन में वही 3-4 स्टोरियां घूम रही होनी चाहिए जो आपने याद करी हैं। किसी एक कोई भी देख लीजिए किसकी स्टोरी अच्छी लग रही है, उसको जो भी है उसको आप रट लीजिए, दूसरा कोई को छोड़ दीजिए, पहले वाले को रटिए, उसको रट लीजिए, चौथे को छोड़ दीजिए, पांचवें को छोड़ दीजिए, छठा बोल रहा है उसको भी। ऐसे 3-4 स्टोरी जब आपने अपने माइंड में घुमा ली है और उसके बाद जब स्टोरी डिस्कशन होगा तो आप शुरुआत से ही बोल सकते हैं कि आई चेस्ट नंबर 22, वहां पे सबको चेस्ट नंबर मिलते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो चेस्ट नंबर वो सारा चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चेस्ट नंबर 22 ने जो ये स्टोरी लिखी है मैं इसके साथ सहमत हूँ। आप शुरुआत में इनिशिएटिव में एक बात बोल सकते हैं, उससे ये पता चल गया एक तो आपने एक्टिव लिसनिंग है, आपने यानी उसकी स्टोरी ध्यान से सुनी, आप एक सोशल इंसान है, आपने इनिशिएटिव लेके वो बात बोली, आपने दूसरे की तारीफ करी, यानी कि आपको मैं बता दूं आप सभी को, दूसरे की तारीफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गुण होते हैं जो कि आपको एक महान इंसान बनाते हैं। अपनी तारीफ तो कोई भी कर लेता है, बट योर रियल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम व्हेन यू अप्रिशिएट समबडी एल्स।
सो आपने टेस्ट नंबर 22 की स्टोरी को सपोर्ट किया, इट इज वेरी गुड। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप ना बोल पाए, तो आपने शांत हो गए, आपने ही बोला। उसके बाद तभी तक किसी और ने बोला, और ने बोला। उस दौरान आपको अपने हाथों का ध्यान रखते कि आपके हाथ कैसे हिल रहे हैं, आपका पैर कैसे बैठा है, आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, आप एक्शन कैसे कर रहे हैं, आपके चेहरे पे टेंशन तो नजर नहीं आ रही है, आपके चेहरे पे स्ट्रेस तो नजर नहीं आ रहा है, आप एक्साइटेड तो नहीं हो रहे, आप घबरा तो नहीं रहे। ये सारी चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना है। ये सारी चीजें नोट हो रही है वहां पर। आपको नहीं घबराना है, आपको गुस्से में नहीं आना है, आपको लोगों को ध्यान से सुनना है, आप जो बोल रहा है उसी की तरफ देखना है। ये नहीं कि एक बंदा बोल रहा है और आप कहीं और देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अनअटेंटिव। यानी आप पहले से या तो प्री प्लान्ड है या फिर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, दोनों ही चीजें नेगेटिव है। सो व्हेन समबडी इज स्पीकिंग, लिसन टू हिम। और उसके बाद जब सारे लोगों ने अपने आप को बता लिया हो, अपनी अपनी स्टोरी को बता देंगे, उसके बाद द मोमेंट यू नो द असेसर विच वुड बी अ डिफेंस ऑफिसर, मोस्ट प्रोबेबली जीटीओ, तो व्हेन ही सेज कि ठीक है, ओके जेंटलमैन, नाउ यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन, तो जैसे ही वो डिस्कशन का ना खत्म होगा तब तक लोग बोलना शुरू कर देंगे, विच इज बट ऑब्वियस, क्योंकि सारे के सारे ट्रेंड और कोचिंग होकर आए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको बताते हैं। सो व्हाट दे वुड डू कि आपको जैसी डिस्कशन में ना खत्म होती है आपने बोल दिया, जोश में आके नहीं बोलना, गुस्से में आके नहीं बोलना है, एक्साइट होके नहीं बोलना है, आपने वेल फ्रेंड्स करके बोलना है। आपने देखा कि आपके बोलते बोलते 10 लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मान लीजिए, कोई बात नहीं, आप